Welcome back friends. Today we will be starting with statistics chapter. Statistics chapter बहुत ज़्यादा easy chapter है and now what is going to make it more easy is government has deleted quite a considerable portion of this chapter so that this chapter becomes more and more easy. Okay, तो इसमें जो है mean, okay, so इसमें there is thing like finding the mean. It has three ways: direct method, assume mean method and step deviation method. इसमें का assume mean method और step deviation method दोनों भी कट किया है. You have only direct method for the exam. तो तुमको statistics में क्या आएगा? एग्जाम में सिर्फ direct method आएगा and that we will be seeing today. We will be doing practice set 6.1 today. 6.1 में there are basically 6 questions, but out of these 4 questions are omitted and only question number 1 and question number 3 is there. So we will be doing question number 3 and question number 1 will be given to you as homework. Okay, so let's see what is mean. mean मतलब क्या? हमको पता है एवरेज. बोले सर हमको एवरेज निकालना आता है, हमको मीन फाइंड आउट करना आता है, आप हमको फिर से क्यों सिखा रहे हो और नए नए मेथड से क्यों सिखा रहे हो? बिकॉज as you grow up, as you will go to industries or whatever job you will do, whatever you will get into research, आज तक तुम लोग एवरेज कितने नंबर्स का निकालते थे? You are finding an average of 10 numbers, 20 numbers, okay, maximum 20 numbers. You will have lakhs and crores of numbers and you will have to want to find out the mean in very less time, and that's why we are learning more and more techniques on how to find out mean. उसके लिए हम लोग नए नए formulas सीख रहे हैं so that we understand to find mean in different ways. Now let's consider that I give you, we want to find out the mean of students of a basic of a small group of friends. Okay, for example there are friends A B C D. okay, इनके परसेंटेज का मीन निकालना है. तो A got 50%, he got 60%, got 40%, got 70%. ठीक है, तो इसका तुमको मीन निकालना है. So somehow you will do, you will add all these 4 and upon 4 करोगे, correct? So you will add 50 plus 60 plus all this and then you will do upon 4 and you will get the answer. बोले सर ये क्या, हमको मीन निकालना आ गया, आप मत सिखाओ. ऐसा नहीं हो सकता, मैं सिखाऊंगा. क्योंकि for example you want to find out the mean of 100 students now. okay, तुमको 100 students का मीन निकालना है. for example their percentages are some of them got 50, 60, एकदम राउंड फिगर में मिला है सबको, है ना, ऐसा मिला है. पर ऐसे 100 स्टूडेंट्स है. Now we want to find out the, तो किसी किसी का 50 है, किसी का 60 है, किसी का 70 है, किसी का 80 है. Now तुम लोग क्या सब ऐड करते बैठोगे क्या? नहीं ना, इट इज सच अ टायरसम जॉब टू ऐड ऑल 100 नंबर्स एंड देन डिवाइडेड बाय 100. तो हम लोग क्या दिमाग लगाते, बोलते कि चलो 50% कितने जनों को आए, है ना, आउट ऑफ 100 50% कितने जनों को आए? 20 जनों को आए, है ना. आउट ऑफ 100 60% कितने जनों को आए? 30 जनों को आए. 70% कितने जनों को आए? 40 जनों को आए. और 80% 10 जनों को आए. करेक्ट है ना. देखो मतलब कि इन शॉर्ट 50 50 50 50 ऐसा 20 टाइम्स लिख के आता था. ये ऐसा 30 30 30 30 सॉरी 60 60 60 ऐसा 30 टाइम्स लिख के आता था. सो मेनी नंबर्स टू ऐड वुड बी अ टायरसम जॉब. तो हमने क्या दिमाग लगाया कि भाई 50 वाले कितने, 20 है ना, करेक्ट. तो हम लोग क्या करेंगे, 50 into 20 कर देंगे, है ना. देखो ना 50 plus 50 50 50 50 ऐसा 20 बार लिख के आएगा 50 50 50 50. So instead of you just multiply 50 by 20 you get कितना रे, 10 1000, करेक्ट. सिमिलरली इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सिमिलरली इसका कर देंगे, सिमिलरली इसका कर देंगे. So now we got the total by adding all this and you know total बच्चे कितने हैं 100 by adding all this.
तुमको मिले तुम्हारा टोटल 100 है और तुमको ये टोटल भी मिल गया. Now you just do this upon this to get the answer. I am just trying to give you an example कि हम क्या करने वाले हैं. Even if you have not understood, it is okay. Let's directly move to the question. Let's directly move to 6.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. तुमको मैं डायरेक्टली बताऊंगा कि कैसे चार्ट बनाना है, कैसे टेबल बनाना है और डायरेक्टली कैसे आंसर लाना है. ओके, सो let's move to practice at 6.1 question number 3. So what does question number 3 say? A milk center sold milk to 50 customers. The table gives the number of customers and the milk they purchased. Find the mean of the milk sold by the direct method. अभी तुमको सिर्फ डायरेक्ट मेथड ही है तो तुमको ज़्यादा मेथड के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है. सो इन डायरेक्ट मेथड बेसिकली देयर आर 4 कॉलम्स. उसमें से 2 कॉलम्स तो दिए हुए रहते और 2 कॉलम्स तुमको खुद से लिखने हैं. पे केयर इवन इफ यू नॉट अंडरस्टूड द वीडियो टिल हियर इट्स ओके, बट इसके आगे पे अटेंशन केयरफुली सो दैट तुमको ये मीन का पार्ट अच्छे से समझ में आ ही जाएगा. ओके, सो लेट्स सी. देखो फर्स्ट क्या है, मिल्क सोल्ड इन लीटर्स. ये क्या है, तुम्हारा क्लास है. क्लास मतलब क्या, हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं ना. देयर इज अ क्लास 1 to 2, 2 to 4 to ऐसा सब कुछ क्लासेस है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं भाई, है ना. ये तुम्हारा क्लास है. क्या है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6. See, this is given to you. Then यहाँ पे क्या है, क्लास मार्क. इसको हम बोलते हैं XI. ओके, ठीक है, we'll come back to that. And here what we call as whatever is given to you, number of customers. What we call as FI. FI मतलब फ्रीक्वेंसी कि कितने हैं. मतलब क्या, 1 to 2 लीटर लेने वाले कस्टमर्स कितने हैं, 17 कस्टमर्स. 2 to 3 लेने वाले कस्टमर्स कितने हैं, 13 कस्टमर्स है. 3 to 4 लेने वाले कस्टमर्स कितने हैं, 10 कस्टमर्स. 7 कस्टमर्स, 3 कस्टमर्स. सी, आउट ऑफ दिस out of these 4 columns, 2 columns are already always given to you in any question, in any damn question. These 2 columns will be always given to you. You have to only find out these 2 columns and a small formula, you directly get the answer. तो देखो तुमको करना क्या है बच्चों. सी, क्लास मार्क अगर तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ध्यान दिया होगा तो हमने किया था, क्लास मार्क इज व्हाट, दिस प्लस दिस अपॉन 2. तो इधर क्या होगा, 1 plus 2 upon 2. कितना, 3 upon 2, that is what 1.5. तो क्लास मार्क कितना देखो रे, जिनको नहीं दिख रहा है, है ना. सो क्लास मार्क इज हाउ मच, 1.5. कैसे मिला, ये प्लस ये अपॉन 2 लिख दिया इधर 1.5. अभी इसका कितना होगा रे, 2 plus 3 upon 2, that is 5 upon 2, that is 2.5. इसका कितना होगा रे बच्चों, 3 plus 4 upon 2, that is 7 upon 2, that is 3.5. अभी तुमको दिमाग में आ गया क्या रहेगा इसका, 4.5. क्या रहेगा इसका, 5.5. ओके, देखो स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छा एक पैटर्न बनता है कभी भी, तो तुमको समझ में आ ही जाता है. ओके, okay, I am making this so that there is no confusion. ठीक है, देखो ये तुमको दिया हुआ है, ये तुमको दिया हुआ है. I taught you how to find out the class mark, this plus this upon 2. दूसरा कुछ नहीं सोचना है, किसी और दोस्त का, ये किसी और टीचर का, डाइजेस्ट का, वाइजेस्ट का कुछ नहीं सोचना है. क्लास मार्क इज व्हाट, दिस प्लस दिस अपॉन 2. फिनिश. ओके, तो ये क्लास मार्क मिल गया. ये क्या है, FI into XI. मतलब देखो ना, इधर दिख रहा है XI, इधर दिख रहा है FI. इनको बस मल्टीप्लाई करे जाना है.
तुमको कुछ नहीं करना, ब्लाइंडली इनको मल्टीप्लाई करे जाना है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा इधर 25.5, यहाँ पे यू विल गेट 32.5, here you will get 35, 31.5 and here you get 16.5। ठीक है, देखो जिनको अभी ये बहुत ज्यादा इजी है रे भाई, पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना और एक के बाद पॉइंट डालना, एक के बाद पॉइंट डालना, करेक्ट। ओके, नाउ यू गेट दिस। नाउ हियर व्हाट यू विल राइट इज समेशन fi xi। समेशन का fi xi, समेशन का मतलब समझो, बहुत लोग इसको डर रहे हैं, ये क्या आ गया बोल रहे हैं, हमको पता नहीं था, ये कुछ तो नया आ गया है ना। वी आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड अप विद स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड ऑल दी अदर थिंग्स इन मैथमेटिक्स, एंड ये तुम लोग इसको नया इंट्रोड्यूस कर रहे हो, लॉकडाउन चालू है। बट सी चिल्ड्रन, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट यू हैव टू स्टडी, दिस इज वेरी इजी। समेशन ऑफ fi xi मतलब क्या कि इन सारों का एडिशन, बस और कुछ भी नहीं। देखो इसका मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑल fi xi है ना। तो इन सारों को एडिशन ऐड करोगे है ना, ये पॉइंट 0 है मेरे, तुमको आता है ना एडिशन, बहुत इजी एडिशन करोगे, सो यू विल गेट 141। देखो आई टॉट यू टू फाइंड आउट fi xi आल्सो, और यहाँ पे क्या फाइंड करना है, समेशन fi मीन व्हाट, एडिशन ऑफ ऑल fi's। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन द क्वेश्चन इटसेल्फ इट इज गिवन टू यू, क्या कि इतने इतने लोगों का किया हुआ है, जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखो अ मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर्स, तो जनरली वो लोग देते हैं कि इसका एडिशन कितना है 50, तुमको करने की भी जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट रीड द क्वेश्चन, दे विल टेल यू हाँ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वर टेकन, क्या देन दे विल से पॉपुलेशन ऑफ दीज मेनी स्टेट्स वर टेकन, तो वो नंबर तुमको ऑलरेडी देंगे, क्वेश्चन में ही होगा, फिर भी तुमको एडिशन तो आता है, ऐड करोगे यू विल गेट। सो समेशन का मतलब समझा, समेशन fi मींस एडिशन ऑफ ऑल fi's, समेशन fi xi मींस एडिशन ऑफ ऑल fi xi। ओके, तो देखो क्या मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ये और ये कॉलम तो पहले से दिया हुआ है, तुमको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, ये क्या करना है, क्लास मार्क निकालना है xi, करेक्ट। नाउ यू गॉट xi, you got fi also, correct। now what you have to do, multiply करना है fi xi को, मल्टीप्लाई किया ये मिला, समेशन fi xi निकाला, समेशन fi निकाला, अभी मीन देखो मीन x बार इज इक्वल टू व्हाट, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। देखो एज इजी एज दैट, कितने इजी फॉर्मूला है, ये नंबर है क्या 141 अपॉन समेशन fi कितना 50, करेक्ट। मीन का कितना इजी फॉर्मूला, देखो मीन, ये x आप बोल रही है x के ऊपर टोपी क्यों लगाया, ये उसको लिखने का तरीका है x बार, ओके। सो मीन इज ऑलवेज रिटन एज x बार, ये उसका तरीका है, जैसे हर एक किसी की स्टाइल होती है, कोई टोपी लगा के घूमता है, कोई किसी का स्टाइल होता है, वैसा ही मीन का स्टाइल है, इट इज ऑलवेज रिटन एज x बार, ओके। सो मीन x बार इज व्हाट, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, समेशन fi xi हम लोग निकाल चुके हैं, समेशन fi भी हम लोग निकाल चुके हैं, इसको बस पुट करना है, सॉल्व करना है, यू विल गेट द आंसर टू बी 2.82, ठीक है, तुमको मिला 2.82, देयरफॉर द मीन ऑफ मिल्क सोल्ड, आंसर भी लिखना है अच्छे से, मीन ऑफ मिल्क सोल्ड इज 2.82 लीटर्स, यहाँ पे भी लिखोगे तो और बेहतर, ओके। सो यू अंडरस्टूड बेसिकली हाउ टू फाइंड आउट मीन, तुमको ये दो तो दिए जाएंगे, तुमको क्लास और फ्रीक्वेंसी हमेशा हमेशा दिया जाएगा, ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड आउट द क्लास मार्क, डिस्प्ले दिस अपॉन 2 एंड fi xi, दिस इनटू दिस विल कम हियर, दिस इनटू दिस विल कम हियर, फिर क्या करना है, समेशन fi xi करना है, समेशन fi करना है, ये नंबर्स आएंगे, फार्मूला दिया हुआ है उसमें पुट करना है, और यूनिट डालने को नहीं भूलना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन चिल्ड्रन दे जस्ट लीव द आंसर टू
grade 2 ऐसा नहीं बच्चों, ये स्टैटिस्टिक्स है, इसमें यूनिट्स होगा ही होगा, नहीं होगा अगर नहीं दिया होगा तो तुम लोग यूनिट्स लिखोगे ऐसा, UNITS यूनिट्स ऐसा लिखोगे, बट यू विल नॉट जस्ट लीव इट एज द नंबर, बिकॉज इफ यू डोंट राइट द यूनिट्स दे कैन कट इवन 1 मार्क ऑफ योर, ऐसा मत सोचो हाफ मार्क ही तो जाएगा क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं, दे कैन कट एज मेनी मार्क्स दे वांट, because most of you will be going in the most of you I suppose will be getting full marks, तो तुम्हारा मॉडरेटर के पास पेपर जाएगा, once it goes to the moderator judges you very badly, the moderator says यार इसको इतनी भी अक्ल नहीं है, लीटर्स नहीं लिख रहे, ऐसा थोड़ी होता है, suppose if I tell you my fees is only 5000, तो तुम बोलेगे क्या रुपीज डॉलर्स पाउंड्स क्या है, सो इन द आउटर वर्ल्ड यूनिट्स हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू, इसलिए यूनिट्स हमेशा लिखना जरूरी है। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट मीन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन टू यू, बहुत ज़्यादा इजी है, तुम लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन खुद से ही करोगे, मैं इसका सॉल्यूशन भी तुमको भेजूंगा आज के आज। ओके, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी अलॉन्ग विद मी। कुछ लोगों का मैंने देखा है कि उनके 2-2, 10-10 वीडियोस देखने बाकी है। ओके, प्लीज डोंट डू दिस टू योरसेल्फ, डोंट डू दिस टू योर पेरेंट्स, दे हैव अर्नड वेरी हार्ड सो दैट दे कुड पे माय फीस। तो अच्छे से भाई पढ़ाई करो, रोज का वीडियो रोज देखो और रोज का होमवर्क रोज करो। ओके, बाय फ्रेंड्स।